everyone, once again welcome to World Student Scope. My name is Priyambada and in today's session we are going to continue with part 2 of chapter 2 that is acid bases and salts. तो पिछले हमने लेक्चर में क्या क्या कवर किया था. We understood about the basic concepts of acid bases and we did quite different activities related to olfactory indicators and how do acids and bases react with the metals. And we did really interesting activities regarding that also. So let us now start with another very interesting activity now in this lecture. Alright, so we have activity 2.4 for the start of this lecture. So let us now get into it. So reading the procedure first, place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. तो ये जो एक्टिविटी है इसमें हमने क्या करना है, ग्रैन्युलेटेड जिंक एंड जिंक ग्रेन्यूल्स आर वन एंड द सेम थिंग्स, कि आपने जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लेने हैं एंड यू हैव टू प्लेस इट इन अ टेस्ट ट्यूब. आपने उसको टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर देना है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. उस जो आपने ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल लिए हैं, अभी आपने क्या करना है, पहले सोल्यूशन डालना है. फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कि फर्स्ट यू हैव टू ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब. जो भी कंटेंट आपने डाला है, क्या क्या डाला है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है बेटा. NaOH is the sodium hydroxide and in it you have added zinc metal, that is zinc. अब ये जो आपने कंटेंट लिया है in the test tube, now you have to warm it. Clear? So now repeat the rest of the steps as in activity 2.3 and record your observations. So activity 2.3 में हमने क्या किया था, if you remember that we have set an apparatus. हमने एक apparatus set किया था जिसमें we have taken the test tube and in that test tube we have added dilute H2SO4. Acid हमने लिया था and then we added zinc granules in it, if you remember. उसके बाद गैस रिलीज हुई थी. Gas was released and then we passed it in the soap bubble वाले solution में हमने उसको pass किया था and then we brought a burning candle near the gas which was evolved. Now we have to repeat the same set of apparatus but instead of using sulfuric acid we have to use this sodium hydroxide which is a base. It means in earlier activity, in the previous activity, we have taken acid as the main solution. Now we are taking the base as the main solution in this particular activity. Clear? Now let us see the observation. After performing this activity in the same apparatus, what do we observe? That bubbles come out from zinc granules. Since zinc granule is reacting with the base, that is sodium hydroxide. So here in this activity also the bubbles are coming out of the zinc granules. Clear? And these bubbles catch fire when the flame is brought towards the test tube. Now if this bubble is catching fire, now will you tell me that ये किस चीज के bubbles, कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी? I hope you know by now. तो आगे हम देखते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में हमें क्या समझ में आया, जस्ट लाइक अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट टू बेसिस. ये हमने अभी जस्ट क्या रीड किया बेटा, वी जस्ट रेड द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स दैट आर रिएक्टिंग विद द मेटल्स एंड बेसिस विच आर रिएक्टिंग विद द मेटल्स. इट मीन्स acids and bases both can react with metals. That is the property we are talking about, and they produce hydrogen gas. नाउ जिन जिन लोगों ने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली दैट जिस गैस ने फायर कैच किया दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस, those students are very much right that the gas that catches fire when reacts with acid or base, if a metal reacts with acid or base, that is a hydrogen gas. Now here zinc reacts with sodium hydroxide and forms the oxide of zinc. एक डिफरेंस आपको ये लग रहा होगा बेटा, क्योंकि हमने जब एसिड की बात की थी तो उसमें वी हैव टेकन डाइल्यूट H2SO4 एंड रिएक्टेड विद जिंक. उसमें अगर आपको याद हो तो जिंक का ही सॉल्ट फॉर्म हुआ था, अ सॉल्ट वाज फॉर्म्ड. ठीक है, अ मेटल सॉल्ट वाज फॉर्म्ड.
बट यहां पे अगर आपको डिफरेंस लग रहा हो कि यहां पे प्रोडक्ट्स में वी हैव ऑक्साइड ऑफ जिंक इंस्टेड ऑफ मेटल सॉल्ट, ऑक्साइड ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म्ड. क्लियर? सॉरी, ऑक्साइड ऑफ मेटल इज फॉर्म्ड. समझ में आया? मेटल सॉल्ट की जगह ऑक्साइड ऑफ मेटल. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग metal with an acid or a base. Clear? But the evolution of hydrogen gas is similar whether you talk about acid, whether you talk about base. अब reaction समझ लेते हैं बेटा. This reaction is very very important. Now let us see कि क्या reaction है ये. So zinc is a metal, NaOH is a base, sodium hydroxide. When these both reacts, this Na2ZnO2, the name of this compound is sodium zincate. The name of this compound is sodium zincate. Clear? And इस compound को हम formula क्या है sodium zincate का? बहुत important है बेटा, ये आपको आता है पेपर में. The formula of sodium zincate is Na2ZnO2. Now you will ask, ma'am, where is the oxide of zinc? So बेटा इसी फॉर्मूला में अगर आप सभी को ZnO दिख रहा है, so that is oxide of zinc which is formed when we react metal with the base. Are we clear? क्यों? सिंपल रीजन है बेटा, क्योंकि यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है. बेस में there is a presence of OH which will react with the metal to form some compound which has oxides. Are we clear? And obviously the hydrogen gas is being released here. तो जो फॉर्मूला आप याद कर रहे हो एसिड के साथ, आपको बेस के साथ भी याद होना चाहिए. किसी भी तरीके से आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो यहां पे बेटा अंडरस्टैंडिंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, सो पे अटेंशन. ऑलराइट, नाउ मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस बबल्स. ठीक है, एक चीज तो आपको सिमिलर दिख ही रही होगी कि दोनों के ही केसेस में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. एंड विच कैचेस फायर. क्लियर? Now talking about the next topic. Next topic क्या है? How do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids? अब बात करते हैं कि metal carbonate कैसे react करता है acid के साथ, whereas how does metal hydrogen carbonates react with acids? For that also we have an activity. So let us begin with activity 2.5 from your NCERT. Now let us begin with the procedure first. Now take two test tubes, label them as A and B. Very simple. दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं, एक को मार्क कर दिया आपने A, दूसरे को मार्क कर दिया आपने B. Now the next step is take about 0.5 gram of sodium carbonate, that is Na2CO3. It should be written as Na2CO3. तो यहां पे Na क्या है? लेट अस फर्स्ट डिवाइड इट. कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं और हम ये पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, एक्टिविटी में, दैट हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड. तो इसमें से बेटा मेटल कौन सा है? तो मेटल बेटा सीधी सीधी बात आ गई, सोडियम इज अ मेटल. एंड CO3 बात कर लो तो बेटा CO3 इज अ कार्बोनेट. CO3 इज द कार्बोनेट. बन गया बेटा आपका मेटल कार्बोनेट. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज द मेटल कार्बोनेट. किसमें लेना है? इन टेस्ट ट्यूब A. एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब B. इट मींस कि मैंने दो टेस्ट ट्यूब यहां पे ड्रॉ कर दिए बेटा. ये पहला टेस्ट ट्यूब है एंड दिस इज द सेकेंड टेस्ट ट्यूब. क्लियर? इस टेस्ट ट्यूब को मैंने A मार्क कर दिया है, इस वाले टेस्ट ट्यूब को आई हैव मार्क्ड एज B. एंड हियर आई हैव एडेड sodium carbonate which is the metal carbonate, Na2CO3 metal carbonate, and here I have added metal hydrogen carbonate, that is NaHCO3 metal hydrogen carbonate. differentiate कर लें अब फटाफट. Na is metal, H is hydrogen, CO3 is carbonate. कोई doubt? Any doubt? I hope not, because it's very easy to determine that. तो हमने A टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है सोडियम कार्बोनेट. इन दिस B we have added metal hydrogen carbonate. And now what we are going to do is add about 2 ml of dilute HCl to both the test tubes. दोनों टेस्ट ट्यूब में ही आपको क्या डालना है बेटा? What you have to add?
you have to add dilute HCl in both the test tubes. Clear till here? Now what do you observe? Now you have to tell me the observation, and the next step that you have to do is pass the gas produced in each case through a lime water, that is calcium hydroxide solution, as shown in figure 2.2, and record your observation. It means कि जब ये reaction takes place होगा बेटा, metal carbonate या फिर metal hydrogen carbonate, when they will react with dilute hydrochloric acid, it means that there is some gas which might release. And अगर वो gas release होती है, then you have to pass it through the lime water. Lime water क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था पिछले लेक्चर में बेटा कि आपको कॉमन नेम के साथ साथ केमिकल कंपाउंड्स के नाम पता होने चाहिए. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH twice. Are we clear? That is the formula of lime water, which is called as calcium hydroxide. Now let us understand this apparatus for this activity. इस apparatus को समझ लेते हैं. We have a test tube here. ये सबको test tube नजर आ रही है. Now इसमें हमने क्या डाला था? We are adding dilute hydrochloric acid solution. उसके अलावा we added sodium carbonate in it. आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया. क्लियर? अब रिएक्शन होता है तो बेटा कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब हमें याद कैसे रहेगा कि मैम किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रही है एंड किस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है. ऑलराइट, तो बेटा बहुत सिंपल सा तरीका है टू रिमेंबर इट. सिंस सोडियम कार्बोनेट को मैं यहां लिख दूं बेटा Na2CO3, जस्ट अ सेकेंड, Na2CO3. ठीक है, तो Na2CO3 में बेटा आपको कार्बोनेट तो दिख रहा होगा CO3. तो बहुत आसान सी बात है बेटा, जहां पे आपको कार्बोनेट दिख रहा है वहां पे ये समझ लो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग रिलीज्ड हियर. जहां पे आपको नहीं दिख रहा, जहां पे आपको कंपाउंड में या एसिड में आपको हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज्यादा दिख रही है, जैसे हमने लिया H2SO4, उसको हमने जिंक के साथ रिएक्ट किया था तो उसमें H2SO4 में हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन वॉज प्रेजेंट इन H2SO4, सो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी. Whereas in this you have carbonate, the presence of carbonate, so यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. क्लियर? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई. अब देखो हमने क्या करना है, इसको हमने डिलीवरी ट्यूब के थ्रू दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला जहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच इज कॉल्ड एज द लाइम वाटर. इसको हमने कॉमन नेम क्या पढ़ा था बेटा? लाइम वाटर. ठीक है, इसको हमने डिलीवरी ट्यूब से इस गैस को पास करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड. इट मींस दिस डिलीवरी ट्यूब हैज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इट इज कमिंग इन दिस टेस्ट ट्यूब व्हिच हैज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH twice. Now they are asking to record the observation. तो ऑब्जर्वेशन क्या आई है बेटा हमारी? दैट व्हेन वी ऐड एसिड टू कार्बोनेट्स, जब भी हम ऐड करते हैं किसको? एसिड में क्या ऐड करते हैं बेटा? कार्बोनेट्स ऐड करते हैं. या फिर अगर आप मेटल कार्बोनेट्स की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऐड कर रहे हो तो बबल्स स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम द कार्बोनेट्स. बबल्स कहां से अपीयर करना स्टार्ट करते हैं? कार्बोनेट से. क्लियर? एंड व्हेन वी पास दिस एयर or gas, you rather say, pass this gas to a quick lime solution, that is calcium hydroxide, the lime water turns milky. The lime water turns milky. It means कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है. ये क्या, कौन सा सोल्यूशन है? CaOH twice. ठीक है, इसमें हम कौन सी गैस बेटा ऐड कर रहे हैं? We were adding कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये लाइम वाटर है, दिस इज द लाइम वाटर एंड इट इज बिकमिंग मिल्की. ये किस में टर्न हो जाएगा? इट विल टर्न इनटू मिल्की. अच्छा, इस पे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट विल हैपन इफ यू पास कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर. तो आपको पता होना चाहिए दैट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इज द राइट आंसर. क्लियर? नाउ होता क्या है बेटा, आप देख लो. Carbonates and hydrogen carbonates of metals contain carbonate group. That is right.
कार्बोनेट ग्रुप कौन सा होता है? CO3 इज द कार्बोनेट ग्रुप। मेटल कार्बोनेट में भी आपको CO3 दिख रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी यू कैन सी CO3 and the metal forms its salt with acid and produces carbon dioxide gas। मेटल ने तो चुपचाप अपना सॉल्ट बना लिया आफ्टर गेटिंग रिएक्टेड विद दिस व्हाट डू वी से एसिड, एसिड के साथ बना के रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बना लिया, बट इस केस में गैस कौन सी रिलीज हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्लियर? रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, दोनों का रिएक्शन हमारे पास गिवन है, सोडियम कार्बोनेट का भी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी है। तो सबसे पहले आप सोडियम कार्बोनेट का देख लो, ये सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है सभी को पहले रिएक्शन में, Na2CO3 इज ए सोडियम कार्बोनेट, इट इज रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज एन एसिड जो हमने लिया। अब ये बना रहा है सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा बना लिया? NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना लिया, प्लस वाटर इज बीइंग रिलीज्ड हियर, पानी रिलीज हुआ। उसके अलावा जो हमने बात की थी बेटा, कौन सी गैस रिलीज हो रही है? तो गैस रिलीज हो गई बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? कार्बन डाइऑक्साइड ही आगे आप पास करवा रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लियर? अब सेकंड हम रिएक्शन देख लेते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकंड रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको भी आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया है? HCl के साथ रिएक्ट करवाया है। HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट आ जाएगा बेटा अगेन NaCl, NaCl इज अ सॉल्ट। क्लियर? मेटल सॉल्ट बन गया सॉल्ट, फिर वाटर रिलीज हो रहा है, H2O रिलीज हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज हियर। समझ आ गया? क्लियर टिल हियर? अब देखो, अब आगे क्या बोला गया है आपको? दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड फॉर्म्स स्लेग लाइम या फिर लाइम वाटर CaOH ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे बेटा? लाइम वाटर कैसे बनता है? जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करवाते हो। क्विक लाइम, क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या बनता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम, फिर क्या बन जाता है? स्लेग लाइम, या फिर उसको बोलते हैं हम लाइम वाटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम वाटर। सो दिस इज अ स्लो प्रोसेस, बहुत फास्ट नहीं है, स्लो है, अनलेस वाटर इज प्रेजेंट इन दी लाइम। जब तक कि पानी प्रेजेंट है, ये प्रोसेस, अंडरस्टैंड दिस दैट इट इज अ स्लो प्रोसेस। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड further reacts with slag lime and forms calcium carbonate। हम रिएक्शन में देख लेते हैं बेटा, ये क्या है? स्लेग लाइम है या लाइम वाटर है? इसको मैं लिख देती हूं स्लेग लाइम, स्लेग लाइम, और इट इज कॉल्ड एज लाइम वाटर, और इट इज कॉल्ड एज दी लाइम वाटर। क्लियर? ये लाइम वाटर हो गया। इसको आपने रिएक्ट करवाया है, किससे आपने पास करवाया थी? कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की थी पास। तो अब दे आर सेइंग दैट इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम Ca, कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड हियर, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड water is released, पानी बाहर आ गया। क्लियर? सो द न्यूली फॉर्म्ड कैल्शियम कार्बोनेट इज insoluble in water। क्यों? क्योंकि इट इज अ सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म है, ये इनसॉल्युबल होता है बेटा पानी में। ठीक है, दिस इज इनसॉल्युबल। आर वी क्लियर? इट्स पाउडर फॉर्म मेक्स वाटर मिल्की, एंड क्योंकि ये थोड़ा पाउडरी होता है, सिंस कैल्शियम कार्बोनेट इज अ बिट पाउडरी, that is the main reason why the lime water turns milky. That is the reason that the lime water turns milky. Clear? Okay. Now, all metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt. कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो वो उसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है। लेट्स सपोज
आपने सोडियम कार्बोनेट लिया था एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, आपने उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था HCl के साथ, तो सोडियम का ही सॉल्ट बना ना बेटा। कौन सा सॉल्ट बना? सोडियम का सॉल्ट बना। कौन सा सॉल्ट बन गया था? NaCl बन गया था। NaCl is a salt and it is a corresponding salt of that particular metal carbonate that you have taken or metal hydrogen carbonate that you have taken. Clear? उसके साथ क्या रिलीज हुआ बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया था और वाटर रिलीज हो गया। क्लियर? सो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज द जनरल रिएक्शन। अगेन इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज द जनरल रिएक्शन। क्लियर? कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स वाटर। आर वी क्लियर? नाउ बेटा बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर? अभी तक तो हम देख रहे थे कि एसिड्स और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड्स एंड बेसिस मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कि जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी वी हैव एन एक्टिविटी, एक्टिविटी 2.6। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर नाउ। प्रोसीजर है बेटा, व्हाट प्रोसीजर सेज इज टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। 2 ml क्या ले लिया हमने? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। Clear? In a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। 2 ड्रॉप आपने डाल दिया phenolphthalein solution। अब आप सोचो कि कौन सा कलर आ सकता है। जब आपने बेस डालना बेस में जब आपने phenolphthalein डालना स्टार्ट किया तो कौन सा कलर आएगा? पिंक कलर। ये सभी को पता होना चाहिए, ये हमने किया है पहली ही एक्टिविटी में, आपने देख लिया होगा। कौन सा कलर आता है? पिंक कलर आता है। ऑल राइट, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन? दैट वी नो। Now add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। अब आपने उसी पिंक जो सोल्यूशन हो चुका है, आपने जिस बेस के सोल्यूशन में phenolphthalein डाला, then the color has now become pink। Now in that particular pink solution you are adding dilute hydrochloric acid drop by drop, you are adding it। Now is there any color change for the reaction mixture? क्या कोई कलर चेंज नजर आया? तो आपको याद होगा बेटा, जब हमने देखा था कि जब phenolphthalein के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो कलर क्या आता है, किसी को याद है? कोई कलर आता ही नहीं बेटा, इट इज कलरलेस। एसिड के साथ phenolphthalein जब आता है तो कलरलेस हो जाता है, बेसिस के साथ इट बिकम्स पिंक। ये हमने पढ़ा था, आई होप सभी को याद होगा। ठीक है, नाउ व्हाई डिड द कलर ऑफ phenolphthalein चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड? अब बात ये आ गई कि कलर चेंज हुआ ही क्यों जब एसिड हमने ऐड कर दिया उसमें। एंड नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। तो जो कलरलेस सॉल्यूशन है आफ्टर एडिंग एसिड, उसमें इन्होंने बोल दिया कि अब दोबारा NaOH डालो, NaOH डालो। डज द पिंक कलर ऑफ phenolphthalein reappears? क्योंकि आपने दोबारा NaOH ऐड कर दिया तो क्या ये रीअपियर होगा कलर? ऑब्वियसली बेटा इट विल रीअपियर। क्यों? क्योंकि बेस के साथ phenolphthalein पिंक कलर देता है, एंड इफ यू आर एडिंग बेस अगेन इन द सॉल्यूशन ऑब्वियसली द पिंक कलर विल रीअपियर। आर वी क्लियर? अच्छा, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में कि ये पूरा आपको सेटअप बता दिया है एंड देन आपको पूछा है कि किसके साथ कलर देगा पिंक, कौन सा कलर आता है, क्यों चला जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। Why do you think this happened? अब देख लेते हैं क्यों। सो ऑब्जर्वेशन में क्या है बेटा? एडिंग phenolphthalein into dilute sodium hydroxide turns the solution pink। क्लियर? phenolphthalein के साथ कौन सा कलर दिया था? पिंक कलर दिया था, ये बात क्लियर है। Now when we add dilute acid in it,
इसी के अंदर अगर आप डाइल्यूट एसिड डाल दो, हमने यहां पे डाइल्यूट HCl डाल दिया, लेट्स सपोज, कलर ऑलरेडी पिंक आ चुका है बिकॉज ऑफ द फिनोफ्थिलीन एंड बेस, इसी की वजह से पिंक कलर आया। नाउ व्हेन वी ऐड डाइल्यूट एसिड इन इट, अ टाइम कम्स व्हेन द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस अगेन। अगर आप ये डालोगे डाइल्यूट एसिड इसमें, तो द सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस। समझ में आया? ये आप ऑब्जर्व करोगे जब ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, ठीक है? तो इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा। एक्सप्लेनेशन क्या है? दैट फिनोफ्थिलीन इज अ कलरलेस रिएजेंट। पहले तो ये समझ लो कि जो फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन होता है जो हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन एसिड्स एंड बेसिस, इट इज कलरलेस, इट डज नॉट हैव अ पिंक कलर पहले से। पिंक कलर पहले से नहीं होता है, इट इज कलरलेस, ठीक है, जनरली। Now it gives the pink to the solution at basic pH, while at acidic pH the solution remains colorless. But जब phenolphthalein base के साथ react करेगा तभी pink color देगा, while if it is reacting with the acid it will remain colorless, कोई color नहीं आएगा। Clear? So it is used in an acid base titration to see the end point. ये जो बेटा वर्ड है ना मैंने जिसको सर्कल किया है, ये टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट इसको हम बोलते हैं। अगर आपको टाइट्रेशन के नाम से एक्सपेरिमेंट आता है पेपर में, किसके नाम से? टाइट्रेशन के नाम से अगर आपको एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है तो इसका मतलब आपको ये एक्सपेरिमेंट पूछा जा रहा है जिसमें हम फिनोफ्थिलीन यूज कर रहे हैं टू डिटरमाइन द पिंक कलर ऑफ बेस फर्स्ट, देन एडिशन ऑफ HCl एसिड एंड द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस। उसके बाद दोबारा NaOH ऐड कर दो, फिर पिंक कलर आ जाता है। दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ टाइट्रेशन। आपको हायर क्लासेस में भी पूछा जाएगा इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर केमिस्ट्री, इफ यू आर ऑप्टिंग मेडिकल, नॉन मेडिकल, एनीथिंग, तो वहां पे भी आपको टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट आपको आएंगे ही आएंगे। और अगर आपको मौका मिला चाहे इस क्लास में चाहे आपको हायर क्लासेस में, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म द टाइट्रेशन एज वेल। तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंटेशन हमने परफॉर्म किया है, समझा है यहाँ पे verbally, obviously, that is the process of titration. Clear? So in the above experiment the first solution is basic, NaOH डाला है, NaOH base क्या है? वो basic है, so we see a pink color. Subsequent addition of dilute acid neutralizes the solution and the end makes the solution acidic. जो आपने further dilution कर दी, उसमें आपने acid add कर दिया तो उसने सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दिया। सॉल्यूशन को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। एज अ रिजल्ट द पिंक कलर डिसअपियर्स। इस वजह से पिंक कलर क्या हो गया बेटा? पिंक कलर फिर आपको नजर नहीं आया, द पिंक कलर गॉट डिसअपियर्ड। क्लियर? ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर? दैट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज। अब कोई तो रिएक्शन हो रहा है बेटा, सम रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, है ना? तो अच्छा, एक और चीज बेटा, जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस अगर आपको कभी भी आता है किसी भी फॉर्म में अगर आपको आते हैं क्वेश्चंस, इवन इफ दे आर नॉट आस्किंग यू दी फॉर्मूला अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई 1 मार्क्स क्वेश्चन ना हो। अगर आपको डेफिनेशन पूछी है तो आप सिंपल डेफिनेशन लिखो। अगर आपको एग्जाम्पल में आपको रिएक्शन पूछा है तो रिएक्शन आपको देना है। बट अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, एंड इफ दे आर आस्किंग कि इसके साथ अगर आप पर्टिकुलर कंपाउंड ए है, अगर आप उसको सब कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो रीजनिंग तो आपने लिखनी ही लिखनी है। फर्स्ट थिंग आपने रीजनिंग तो लिखनी ही है, ठीक है, विदाउट अ डाउट रीजनिंग होगी पहली चीज। दूसरा, आपने एग्जाम्पल चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो आपको लिखना है। एग्जाम्पल्स यू हैव टू राइट वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट। थर्ड, आपको रिएक्शंस लिखने हैं चाहे आपसे पूछा हो चाहे ना पूछा हो। रिएक्शंस देने ही देने हैं अनटिल एंड अनलेस आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन ना आया हो, उसमें डिफरेंस है। अगर आपको 1 मार्क्स में सिर्फ रिएक्शन पूछा है तो आप सिर्फ रिएक्शन लिखोगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांगी है तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन दोगे। क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी फॉर्मेट में चेंज होके आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, क्वेश्चंस 2 बार चाहे आप टाइम ले लो बट रीड इट प्रॉपरली। सो बेटा जो रिएक्शन है
जो टेक प्लेस करता है व्हेन यू परफॉर्म दिस टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या होगा बेटा, NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इट इज रिएक्टिंग विद एन एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट। दिस इज अ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड दैट इज अ सॉल्ट। एंड आपको पता है NaCl जो सॉल्ट है वो हम खाते भी हैं, नमक हम यूज भी करते हैं अपने खाने में, है ना। कैसे यूज कर लेते हैं हम उसको, आप क्या करते हो, आप कुकिंग के टाइम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, यू ऐड सॉल्ट इन योर फूड दैट यू कुक, राइट। एंड कुकिंग के टाइम आप सॉल्ट भी ऐड करते हो और वो हम खा भी लेते हैं, वी आर एबल टू ईट इट, और हमें वो खाना बहुत टेस्टी भी लगता है ना। बट वो बना किससे, देखो तो एसिड प्लस बेस। क्यों, वाई, बिकॉज सॉल्ट इज न्यूट्रलाइज्ड, इट इज न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज्ड का मतलब कि इट इज नॉट एसिड नॉट इवन अ बेस। सॉल्ट एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, वो उन दोनों के बीच में है, न्यूट्रल बिल्कुल। दैट इज वाई यू आर एबल टू कंज्यूम इट। उसके अलावा इस रिएक्शन में और क्या बाहर आता है, वाटर बाहर आ जाता है। एंड प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने रिएक्शन में वाटर मिस कर दो और सिर्फ इतना ही लिखो तो बेटा आपके मार्क्स कट जाएंगे। एंड प्रोडक्ट्स आपको याद होने चाहिए हर रिएक्शन के, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। बैलेंसिंग सभी रिएक्शंस में होनी चाहिए, ऑल द रिएक्शंस शुड हैव बैलेंसिंग, क्लियर। तो यस, क्योंकि आपको जो सॉल्ट मिला वो बहुत ही न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में है, इट्स क्वाइट न्यूट्रलाइज्ड, तो उसको हमने सीधा सीधा क्या बोल दिया है बेटा, वी कॉल्ड इट एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्ट आया है वो न्यूट्रलाइज